Morning, all student. Now read bilingual method. This is comparatively a recent method invented by Professor C.J. Dodson of Wales. He claims that this method is very effective in teaching a foreign language because his experiment on pupils yield desirable results. In this method is a unique method which carrier the merits of translation come grammar method and direct method and structural approach. The main characteristics of this method are: first, it emphasis on creating situation not actually like direct. In this situation are created just by giving the mother tongue equivalents of English word. And second are sentence is the unit of teaching. Third, rigorous practice is done in sentence patterns. Fourth, mother tongue is used to explain the meaning of new words, phrase, idiom, sentence, and grammatical points and rule. Word for word translation is not done. This type of translation is called interpretations by Dodson. Translation are only done by the teacher, not by the student to explain the matter after explanation. Mother tongue is only used during early stage. And fifth are the subject matter is selected and graded. 6. Experiment to have so that student taught by this method learn more than other children in India. Professor S.N.L. Sastry of Central Institute of English, Hyderabad, conducted an experiment. He divided students of fourth class into two groups. One group was taught by bilingual method. This other was taught by direct method. It was found that the bilingual method group learned to speak 23 sentences, while the direct method group learned to speak only 40 sentences. The average score of bilingual method group was 64% as against the 52% of direct method group. Dear student, we read today bilingual method. The bilingual method is proposed by Professor C.J. Dodson of Wales. The bilingual method is used to easily learns English to children. In this method, use of mother tongue and sentence is the unit of teaching. Mother tongue is used to explain the meanings of new words because learner use mother tongue easily. Childs are both English language and mother language is equivalent. Learning the durations of learning period when students are learning them bilingual method helps us.
प्रिय छात्रों, प्रोफेसर सीजे डॉडसन के द्वारा बाइलिंगुअल मेथड दिया गया। यह मेथड बहुत ही उपयोगी है। इस मेथड के द्वारा बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही सिखाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मातृभाषा में बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। वाक्य सिखाने की शैली का एक भाग होता है और वाक्यों को अक्षरतः बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। जब वे सीखते हैं, उनके सामने कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। परेशानी पहली तो ये होती है कि जब वो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश उनकी मातृभाषा नहीं है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो भारतवंशी लोग हैं और यहाँ तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। बालक जिस परिवेश में रहता है और परिवार के सदस्यों में जो भाषाएं बोली जाती है या स्थानीय लोकप्रिय जो भाषा होती है, यदि हम उस ज्ञान को उनकी भाषा से जोड़ते हुए यदि सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे आसानी से इसे सीख लेते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेन करते हुए प्रोफेसर सीजे डॉडसन ने बताया है कि मातृभाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जो शब्द लिखते हैं, जो व्याकरण लिखते हैं या जो कुछ हम लिखते हैं, उस भावों को तारतम्यता के साथ समझने का प्रयास भी बच्चे करते हैं, क्योंकि मातृभाषा में ही ऐसा संभव है कि हम किसी भी भाषा का अनुवाद यदि बच्चे की मातृभाषा में करें तो वो बच्चा सीखने का प्रयास करने लगता है। इन्होंने भारत के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद के प्रोफेसर HNL शास्त्री ने अनुसंधान किया और उन्होंने बच्चों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया और उनको सीखने के लिए 14 सेंटेंस उनको दिए। 23 सेंटेंस स्पीकिंग बोलने के लिए दिया गया कि वो 23 सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें से बाइलिंगुअल मेथड के बच्चों को जो सीखने के लिए कहा गया था, बाइलिंगुअल मेथड मातृभाषा के भावों से समर्पित होकर के जिन्होंने सीखा, अर्थात उस ज्ञान को मातृभाषा के रूप में जिन बच्चों ने सीखा उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 64% बच्चे उसको आसानी से सीखे, जबकि डायरेक्ट मेथड से जिनको दिया गया था सीखने के लिए उसमें 52% ही सफल हो सके। प्रिय छात्रों, यह देखा गया, यह पाया गया कि 64% इज मोर देन 52%, अर्थात बाइलिंगुअल मेथड बहुत ही अच्छा और कारगर रहा। इस तरह से हम बच्चों को सीखने के लिए और सिखाने के लिए, इस प्रकार से हम सीखने और सिखाने के लिए मातृभाषा का चयन करते हैं। आप शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको बच्चों के
मानसिक स्तर के अनुकूल शब्दों का चयन करना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि छोटे छोटे शब्दों में और एक छोटे छोटे शब्दों के समूह से वाक्यों का निर्माण कराते हुए बालकों को उनकी मातृभाषा में सिखाने का प्रयास आपका सफल होगा। इसी के साथ बाइलिंगुअल मेथड में आज बस इतना ही। फिर अगले दिन मिलेंगे, हम पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड। इसको आप घर पे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेथड्स और अप्रोच से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। इसी के साथ आज बस इतना ही। स्टे एट होम एंड यू सेफ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।